esteemed members of the faculty, and our young friends here. Good afternoon and namaskar. Alright. So, the moderator, madam, has already given an introduction of myself. So, she has done me much honor, which I'm sure I don't deserve. But I teach in IIT Delhi in the Department of Electrical Engineering, and my specific streams are in VLSI technology, that is semiconductors. I try to do circuit design for analog and digital electronics, and the other specialization I work on is computer technology, which is essentially computer software hardware design. Alright, so system design. This is what I've spent my life in doing. This is my 30th year after my PhD. So this is what I've been doing for 3 decades. Whether it's useful or not is up to the customer and consumer to decide. Alright. So what I understand is from your teachers is that most of you, or pretty much all of you, are students of BBA, BCom, and what was the third one? BCA. Alright. So BCA people have some introduction to the basics of computer science, computer applications. BBA people have understanding of economics, as do the people who are doing BCom. Is that alright? Okay. Don't just sit there, just whenever you feel like, stand up and ask. I normally don't let students of my class go away without understanding. Alright? So let's see this, if we can make this as simple as possible. We will talk about something called Industry 4.0. Have you heard this term in the media somewhere, etc.? Okay, so this is very hot right now, and this is specifically important in the context of Make in India. Everybody knows Make in India, alright? So the Industrial Revolution started sometime at the end of the 18th century, alright? Which means around 1785 or so. What did it start with? What was the first force or invention that started the Industrial Revolution? Anyone? Everybody knows this. You studied it in school. So the first prime mover of the Industrial Revolution was the steam engine. Alright? Who invented the steam engine? The students, please. You heard the name James Watt? You have, audio systems and electrical systems which consume a certain number of watts, right? You have a 200 watt audio system. So Watt is named after James Watt. He invented the steam engine, which was immediately used in the industry. Prior to that, the situation was that all the industrial production machinery, like let's say looms, there were hand looms, then metal working. Alright. Are you more comfortable in Hindi? Yes, you are more comfortable in Hindi. So let's do this in Hindi. I will kind of make a mixed chow mein. Alright. Okay, so ये जो जेम्स वॉट साहब थे, इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को शुरू किया। कैसे? कि भाप से चलने वाली इंजन जो है उसका उन्होंने आविष्कार किया। उससे पहले जो कारखानों में सारा काम होता था, या तो मनुष्य के हाथ से होता था, हमारे मांसपेशियों की शक्ति से, अथवा पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था. We used to use animals. Alright. So
टिपिकली हॉर्सेस वर यूज्ड इन यूरोप में घोड़ों का इस्तेमाल होता था, और भारत में, एशिया में भैंस या बैलों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो जेम्स वॉट ने जो इंजन बनाई वो एक छोटी सी इंजन जो है काफ़ी सारे पशुओं का काम कर देती थी। तो आपने सुना होगा कि ये इंजन 5 हॉर्स पावर की है। हमारे गाड़ियों में 90 हॉर्स पावर की इंजन होता है, ठीक है ना, और कार सर 80-90 हॉर्स पावर इंजन, which means they can do as much work, they have as much power as 80 horses. So if you had 80 horses, अगर आपके पास 80 घोड़े होते तो आप अपनी गाड़ी को उनसे खिंचवा सकते थे। ठीक है, आपका जो सेडान है या जो कुछ, जाहिर सी बात है कि 80 घोड़ों के लिए 80 घोड़ों का अस्तबल चाहिए, उनका दाना चारा ये सब चाहिए। सो बहुत सारी जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए उनके लिए, उनके चारे का बंदोबस्त, उसके पीछे पैसे लगते हैं, तब जाके आपको उनमें से कुछ काम मिलता है। 80 घोड़ों में से इतना सारा कुछ जेम्स वॉट ने एक छोटी सी इंजन, मान लो 6 फुट हाइट का, उसमें समेट दिया भाप की शक्ति से। अब अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है जगह की जो ज़रूरत थी वो कम हो गई। दूसरी बात यह है कि स्टीम इंजन की मालिश नहीं करनी पड़ती, घोड़े की मालिश करनी पड़ती है, मेंटेनेंस कम हो गया। ठीक है, चलाना ज़्यादा आसान है। घोड़े को चलाने के लिए आपको उसका हुनर आना चाहिए। स्टीम इंजन को एक बार चला दो तो चल जाती है। और चौथी बात यह है कि इंजन का जो फ्यूल है, जो उसका ईंधन है, वो कोयला था उस समय। तो 5 घोड़ों के लिए जितना कोयला रखने की जगह चाहिए, 5 घोड़ों के लिए दाना पानी रखने के लिए जितनी जगह चाहिए, तो उसको जुटाने में जितना काम करना पड़ता है, 5 घोड़े के समान एक इंजन को जो कोयला चाहिए उसके लिए जगह कम चाहिए, और उसको एक ही जगह से लेके जा सकता है सप्लायर से। तो ये सारा जो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस जिसको कहते हैं, ये नीड काफ़ी कम हो गया। इसके साथ साथ जगह की ज़रूरत भी कम हो गई। तो जाहिर है कि 80 घोड़ों को चलाने का जो खर्चा था वो अब काफ़ी कम हो गया एक इंजन से। तो क्या हुआ कि 80 घोड़े से मैं दिन में जितने प्रोडक्ट्स बना सकता था, मान लीजिए 80 घोड़ों से मैं दिन में 300 गज कपड़ा बुन सकता था। अब उसके 10% खर्चे में मैं दिन में 300 गज कपड़ा बुन सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, क्योंकि मेरा इनपुट कॉस्ट बढ़ गया। तो इस तरह से वो शुरू हुआ का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब उसके लिए कच्चा माल जो है, जैसे आपका कपास वगैरह है, वो भारत से जाता था इंग्लैंड में, लेकिन कपास वो लोग खरीदते थे बहुत कम दामों पर, क्योंकि भारतीय जो किसान है उसकी ज़रूरतें बहुत कम है, और उसका निर्यात करने का जो उसका ट्रांसपोर्टेशन का जो है कॉस्ट जो आता था काफ़ी कम था, क्योंकि बड़े बड़े जहाज़ थे उनके, और फिर प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत कम था क्योंकि वो स्टीम इंजन का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये सब करके कपास से लेके कपड़े पे उनका कपड़ा बेचने में उनका प्रॉफिट जो है, मुनाफा करीब 1000 गुना होता था। यानी कि 1 रुपये का कपास खरीदा और जो कपड़ा बुना उसमें से उसको 1000 रुपये में बेचते थे। ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा। और इसके पीछे जो मेन फोर्स है दैट इज स्टीम। दिस इज इंडस्ट्री 0.0, स्टीम पावर, यानी कि भाप की शक्ति से चल रहा था। कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस? स्टूडेंट्स, आपको तो सवाल ठीक है नहीं है, आपको आता है, लेकिन स्टूडेंट्स, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस? ओके।
नाउ केम माइकल फैराडे, सबने नाम सुना हुआ है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माइकल फैराडे आते हैं और वो दिखाते हैं कि कुछ कुछ करके कुछ चुंबकों से और तारों से जनरेटर बनाया जा सकता है जिससे बिजली पैदा होती है। इंटरेस्टिंग। उस बिजली को फिर उन तारों में से बहाएंगे तो मोटर का भी काम करती है। ठीक है। इसके बाद 1890 के करीब आते हैं एडिसन। अब उनको एक आइडिया चमकता है। वो कहते हैं कि मैं एक जगह बिजली बनाता हूँ, बिजली तारों से बहती है, मैं उसको दूसरी जगह भेज देता हूँ, वहाँ पे मोटर लगा के इसको कंज्यूम कर लूँगा, इससे कुछ चला लूँगा मशीन। तो अब क्या हुआ कि बिजली हम लोग बना कहीं रहे हैं और उसकी खपत कहीं और हो रही है, बीच में तारें लगी है। वो जो जगह मुझे चाहिए थी स्टीम इंजन लगाने के लिए, अब वो भी ज़ीरो हो गई, नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मोटर और अपने मशीन्स लगाने। तो मेरी जगह की ज़रूरत कम हो गई। कोयला रखना, खरीदना, मेंटेन करना उस कोयले का शेड, वो सारा गया। कोयला चूँकि नहीं रहा मेरे कारखाने के अंदर, तो मेरा कारखाना साफ सुथरा रहने लगा, सफाई का खर्चा कम हो गया, तो इससे और मुनाफा बढ़ गया। उतना ही 300 मीटर 300 गज़ी में कपड़ा बुनता हूँ रोज़, लेकिन अब मुझे कोयले का जो झमेला है वो भी नहीं भुगतना है, वो खर्चा मेरा और कम हो गया। तो इस करके बिजली का जो उपयोग है, प्रयोग जो है, वो बढ़ने लगा। The use of electricity started increasing. This is industry 2.0. So industry 1.0. Industry 0.0 is steam. Industry 1.0 is electricity. All right. Then we have, ऐसा काफ़ी दिन चलता रहा, गाड़ियाँ बनती रहीं, क्योंकि हेनरी फोर्ड ने फिर तुरंत थोड़ी समय में गाड़ियाँ बनाने का एक टेक्नोलॉजी निकाला, एक मेथड निकाला, पद्धति। उसके कहते हैं असेंबली लाइन। असेंबली लाइन का सिद्धांत क्या है, मूल सिद्धांत क्या है कि मान लीजिए मैं एक दर्जी का दुकान चला रहा हूँ कमीज बनाने के लिए, to make shirts. So let's say there are 4 stages of making a shirt. पहले कपड़ा आता है, कपड़े का थान आता है, एक दर्जी उसको काट के कमीज का जो सामने का और पीछे का हिस्सा बनाता है। ऑलराइट। दूसरा दर्जी है, वो इन दोनों हिस्सों को सी के तो शर्ट का खोल जो है वो तैयार करता है और दोनों बाजुएं उसमें सी देता है। ठीक है, ये दूसरा दर्जी हो गया। तीसरा हो गया जो उसमें कॉलर और कफ लगाता है, और चौथा हो गया जो सारे बटन सीता है। तो ऐसे 4 दर्जी है जो 4 काम करते हैं। अब हर एक को लगते हैं 15 मिनट अपना काम करने में। तो जाहिर है कि पूरी कमीज बनने में, निकलने में 60 मिनट, 1 घंटा लगता है। तो 1 घंटे में 1 कमीज निकल के आती है। इसमें समस्या क्या है? मान लीजिए जब ये आदमी आपका कॉलर सी रहा है, तब ये दोनों खाली बैठे हैं, ये भी खाली बैठा है। ठीक है, सिर्फ एक आदमी काम कर रहा है, बाकी 3 खाली बैठे। सबको समझ आई बात? ये बहुत इनएफिशिएंट है, एफिशिएंसी कम है। हम ऐसा करते हैं, इस दर्जी ने कपड़ा काटा पहले वाले ने, अगले वाले को दे दिया सीने के लिए, और एक और कपड़े का थान उठा लिया, उस पे वो काम करने लगा। इसने आगे बढ़ा दिया अपना सी के इधर को कॉलर लगाने के लिए, और कटा हुआ कपड़ा इसने यहाँ ले लिया। ऐसे करके 1 घंटे में पहली कमीज निकल के आएगी, और उसके बाद हर 15 मिनट में 1 कमीज निकल के आएगी। ये सबको बात समझ आ रही है? इसको कहते हैं असेंबली लाइन। राइट।
तो असेंबली लाइन से एकदम से हर घंटे में या हर मिनट में जो आपका उत्पादन का वो है रेट है वो बढ़ जाता है। तो जाहिर है आप ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं एक दिन में। तो हेनरी फोर्ड जो है वो अपनी फैक्ट्री से हर 5 मिनट में गाड़ी निकाल देता था। उसका ऐसा असेंबली लाइन बना हुआ था। ठीक है, तो जाहिर है गाड़ियों की कीमत कम हो गई, साधारण आदमी के पहुंच के अंदर आ गई। तो अमेरिका में गाड़ियों का बहुत चलन होने लगा। इनफैक्ट अमेरिका इज द फर्स्ट ऑटोमोबाइल ड्रिवन सिविलाइजेशन। यूरोप में इतनी गाड़ियाँ नहीं थी। तो ये हो गया इंडस्ट्री 2.0 पाइपलाइन या असेंबली लाइन। हम इसी सिद्धांत को कंप्यूटर्स में भी यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के का जो इंटरनल सीपीयू होता है वो भी इसी सिद्धांत पे चलता है। इट वर्क्स ऑन द सेम थियरी। ऑलराइट, मैं आज ही सवेरे पढ़ा गया, खैर जो भी है। तो अब हो गया असेंबली लाइन। अब क्या हुआ कि हर एक असेंबली लाइन के हर एक स्टेप में, हर एक स्टेज में जो काम है वो करीब एक जैसा ही है, एग्जैक्टली एक जैसा ही है। एक दर्जी कपड़ा काटता है, दूसरा कपड़ा सीता है, तीसरा कॉलर लगाता है, चौथा बटन काटता है। ठीक है, तो किसी को ये आइडिया आया कि क्यों ना ये काम मशीन से करें, क्योंकि वही काम बार बार करना है, चार पांच काम एक बंदे ने करने नहीं है। उन्होंने मशीन लगा दी। तो मशीन लगाने से जो आपके लेबर वेजेस का, तनख्वाह का जो दिहाड़ी का जो पैसा था वो बच गया। उसका रेट जो है, प्रोडक्शन रेट उतना ही रहा। तो उत्पादन का जो दाम है, जो प्राइस है, वो और कम हो गया। इस सिद्धांत से आज की जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो चलती हैं। ऑलराइट, दिस इज इंडस्ट्री 3.0। We are using automation, but the principle is still the one of assembly line. सिद्धांत असेंबली लाइन का ही सिद्धांत है, लेकिन अब असेंबली लाइन के हर स्टेज पे, हर वर्क स्टेशन पे एक मशीन लगा है। और सारे मशीन्स का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो एक ऑपरेटर के सामने एक कंट्रोल रूम में है। तो कुछ इमरजेंसी होता है या कुछ होता है तो ऑपरेटर तुरंत उस पर ध्यान देता है, उस पर काम करने लगता है। ऑलराइट, ये हो गया इंडस्ट्री 3.0। अब आया है दौर, हमें पता है एक चीज है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। पता है, आप सबने नाम सुना हुआ होगा। ओके, सो IoT का अब जमाना है। और दूसरा जमाना किस चीज का है? यानी कि AI ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। उसके साथ एक और शब्द का उपयोग होता है, उसे कहते हैं ML। ML का मतलब मशीन लर्निंग। सो AI आज की तारीख में जो है वो मशीन लर्निंग के बगैर नहीं चल सकता। और AI ML एक साथ एक तरह से जुड़वा भाई है, या जुड़े हुए भाई है। ओके, सो AI का जो सारा जो इंजन है, जो आपके बॉनेट के नीचे AI की गाड़ी को चला रहा है, वो मशीन लर्निंग है। पहले मैंने जब पढ़ाई की अपनी मास्टर्स या PhD की, तब AI कुछ और ही था। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है कुछ अलग था, उसमें मशीन लर्निंग का इस्तेमाल नहीं होता था। अब मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होता है। उसमें लिमिटेशंस थी, तभी मशीन लर्निंग का प्रयोग किया गया। तो अभी AI और ML एक साथ है, जुड़वा भाई की तरह, या पति पत्नी की तरह। पति पत्नी नॉर्मली एक साथ रहते हैं, खैर जो भी है। तो एंड द अदर थिंग इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? देयर आर थिंग्स which do certain tasks। आपका फोन जो है, मोबाइल फोन एक थिंग है, कुछ करता है। फोन करते हैं, माँ बाप फोन करते हैं तो फोन उठाते नहीं है, ये भी एक तरीका है। फिर
उस पर वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया करते हैं। ये थिंग है जो कुछ कर रहा है। अब इस थिंग को हम लोग अगर इंटरनेट पे डाल दें तो ये हो जाता है कनेक्टेड, बाकी सब फोन, दुनिया के बाकी सब फोन से जुड़ गए। ये हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो दीज आर थिंग्स which do some tasks and all of them are interconnected. तो आजकल एक चीज़ है जिसे स्मार्ट होम कहते हैं। स्मार्ट होम में हर चीज़ IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, एयर प्यूरीफायर है, एयर कंडीशनर है, लाइट्स एंड फैंस हैं। अब मान लीजिए हर एक जो है आपके घर के वाईफाई से जुड़ा हुआ है, रूटर से। Therefore, यानी कि अतः ये लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एक आपका एयर कंडीशनर जो है वो आपके फ़ोन को डेटा भेज सकता है, फ़ोन से डेटा मंगवा सकता है। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं फ़ोन से अपना फ़ैन ऑन कर सकता हूँ, AC ऑन कर सकता हूँ, वॉशिंग मशीन ऑन कर सकता हूँ। और अगर मैं घर में नहीं भी हूँ, ऑफिस से कर सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पे है। अच्छा, अगर मैंने घर पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सेंसर ये सब लगाया हुआ है, तो ये जो मेरा एयर कंडीशनर है वो रूम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देख के रीडिंग लेके AC को चला सकता है अपने आप, ताकि जब मैं घर पहुंचूं तो मुझे ठंडा कमरा मिले अपना। ठीक है। अच्छा, जब मैं सैमसंग में था तो हम लोग स्मार्ट फ्रिज पे काम करते थे। एक सैमसंग का स्मार्ट फ्रिज है, वो भी IoT है, इंटरनेट से जुड़ा रहता है वाईफाई के थ्रू। और बहुत बड़ा फ्रिज है, इट्स लाइक 6 फुट ऊंचा है, डबल डोर है, यानी कि 2 पल्ले हैं उसके। और इंटरनल उसकी कैपेसिटी शायद 600 लीटर है। ऑलराइट, तो बहुत सारा जगह है उसके अंदर। और सामने एक वो जो आइस मेकर और एक डिस्प्ले है। आप लोग एक तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं कैसा है। तो मैं इस पर काम कर रहा था। तो इसमें क्या है, सामने डिस्प्ले तो है ही जो इंटरनेट से जुड़ा रहता है। तो आप जैसे इंटरनेट से कनेक्टेड है तो दिन में ब्रेकफास्ट तैयार करते करते अपना दिन का टेम्परेचर वगैरह देख सकते हैं, वेदर फोरकास्ट देख सकते हैं, फिर उस अनुसार कपड़े अपने चुन सकते हैं। एक वो है। दूसरा है कि आप रेसिपी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फ्रिज में डिस्प्ले पे रख के अपना उसको कुक कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। ये बहुत जो अजीब सा था, और ये कोरिया और जापान वगैरह में बहुत चला था, शायद अमेरिका में भी। वो था कि उसके अंदर कैमरे लगे थे, जो फ्रिज के अंदर की तरफ मुंह करते हुए कैमरे लगे थे। 3 या 4 थे। ठीक है, मुझे स्पेसिफिकली उन कैमरास पे काम करना होता। तो कैमरा जो है वो फ्रीज रेफ्रिजरेटर के अंदर के हर शेल्फ की तस्वीर लेता था, इमेज लेता था, और देखता था कि कौन सी चीज़ खाली हो रही है, कम हो रही है। सब्जी वाले ट्रे में सब्जी का लेवल कितना है, दूध में दूध का लेवल क्या है, वगैरह वगैरह। और फिर वो एक हिसाब लगाता है और फिर वही जो चीज़ें कम है उनको ऑर्डर कर देता है इंटरनेट पे। ठीक है, इंटरनेट पे सुपरमार्केट से कनेक्ट करता है, तो रिलायंस रिटेल ऑर्डर कर देता है और शाम तक वो चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं आपके दरवाजे पे। बहुत अजीब है। मतलब ये सब ना कोरिया वगैरह या यूरोप या US में चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग कुछ ही चीज़ें खाते हैं, कुछ ही तरह की चीज़ें खाते हैं, और फ्रिज में बहुत ऑर्डरली वे में रखते हैं। हम लोग इतने व्यवस्थित में रखते हैं अपने फ्रिज को। ये है, ये भारतीय मध्यम वर्ग का ये वो है, क्या कहते हैं, एक मार्का है। तो भारत में ये चलता नहीं था। दूसरे और उसमें प्रॉब्लम्स थे। वो क्या, मतलब जितने टेम्परेचर्स के लिए, बाहरी टेम्परेचर्स के लिए वो बना था, दिल्ली में उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसको फिर वो करना होता था।
उसकी ट्यूनिंग करनी होती थी एल्गोरिथम्स की। और फिर एक बहुत बड़ी समस्या थी कि दिल्ली का जो प्रदूषण है, पोल्यूशन, उसमें सल्फर बहुत ज़्यादा है, सल्फर ऑक्साइड्स। और फ्रिज में जो आपके कॉइल्स होते हैं ना, कूलिंग कॉइल जिसको कहते हैं, वो कॉपर के बने होते हैं, तांबे के। तो ये सल्फर ऑक्साइड्स के साथ वो रिएक्शन होता है उनका, और उसकी वजह से ऑक्साइड फॉर्म करके उसमें छेद हो जाते हैं। तो थोड़े दिनों बाद वो ठंडा करना बंद कर देता है। इसका कोई इलाज हम लोग नहीं निकाल पाए थे। तो इसका एक ही इलाज था कि हर 2-3 साल में वो बदला जाए, कूलिंग कॉइल 3 साल में। वो एक तरह से अच्छा है क्योंकि वो कूलिंग कॉइल बिकता था, बिजनेस। ठीक है, जैसे आप HP का प्रिंटर लें तो प्रिंटर तो करीब 1000-2000 खाता है, ऑलमोस्ट कुछ नहीं उसका कॉस्ट है। लेकिन बिजनेस जो है कार्ट्रिज का है। हर एक बार आप कार्ट्रिज लेते हैं तो 1000-1500 रुपये खर्च होते हैं। वो कंटिन्यूस बिजनेस है। ये भी एक बिजनेस मॉडल है जो यहाँ पे अकाउंटेंसी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये एक वेल नोन, बहुत जाना माना बिजनेस मॉडल है। आप सामान जो है, मशीन जो है, बहुत सस्ती बेचिए, लेकिन उसके रिफिल्स महंगी बेचिए। ठीक है, बहुत सारी कंपनी वैसे करती है। इसीलिए ये होता है कि आपका जो फोन है ना, ज्यादातर साधारणतया होता ये है कि हर 3-4 साल में अंततः इसको रिप्लेस करना होता है। मतलब मैंने एक अपने फोन को 5 साल चलाने की कोशिश करी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, इसका एक बड़ा कारण ये है कि इसमें जो बैटरी होती है, अब आप आजकल इस बैटरी को रिप्लेस नहीं कर सकते, पूरा फ़ोन खोलना पड़ता है। ठीक है, फ़ोन खोलते हैं तो इसकी वारंटी वाइड हो जाती है और बैटरी इतने अच्छे से निकलती भी नहीं है। अगर निकाल के रिप्लेस करी तो फिर ढक्कन फिर से ठीक से लगता नहीं है वापस। तो बैटरी निकाल के बदलना मुश्किल है, और ये बैटरी बहुत जल्दी खत्म, 3 साल में करीब करीब भूल जाती है। ठीक है, आपको फिर अजीब सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हर 1 घंटे में एक बार चार्जर लगाना पड़ता है ताकि फ़ोन कुछ और दिन चल जाए। तो अब बैटरी को उसमें इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि आपको पूरा फ़ोन नया लेना पड़ेगा हर 3 साल में, जब उसकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। हालांकि बाकी उसके जो चिप्स और कंपोनेंट्स हैं वो चालू रहते हैं। ये स्टैंडर्ड बिजनेस स्ट्रेटेजी है। जस्ट बैटरी उसका एक वीक पॉइंट है और उसी को हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इसका कोई तोड़ नहीं है। इसका तोड़ लगाएंगे, सस्ती बैटरी नहीं लगाएंगे तो फ़ोन ठीक से बंद नहीं होगा उसके बाद। ऑलराइट, सो यहाँ तक सब तो ठीक है। हम लोग कहाँ से आए थे? यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो हमारे पास इंडस्ट्री 3.0 में वी हैड robots, automation, but now we have internet connection, internet connected things, and we have AI ML. What we can do now is interconnect all the robots. पहले क्या था, रोबोट सारे कमांड लेते थे सेंट्रल कंट्रोल रूम से। ठीक है, अब क्या है, आपके पास खूब सारे रोबोट्स हैं, आपने सबको इंटरनेट वाईफाई से जोड़ दिया। ओके, वो आपस में बात कर सकते हैं, उनको वापस कंट्रोल रूम से कमांड लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे जो चीज़ें बनती हैं उसको कहते हैं स्वॉर्म, रोबोटिक स्वॉर्म। खूब सारे रोबोट्स का झुंड, स्वॉर्म इज झुंड। ओके, जैसे मधुमक्खियों का झुंड होता है, छत्ते में से निकलता है, या चींटियों का झुंड होता है जो चींटियों के उसमें से निकलता है, एंट हिल में से निकलता है। तो इसको कहते हैं स्वॉर्म। और इसमें अगर कुछ हम करने की कमांड दें, आदेश दें, तो ये सब मिलके उस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। ऑलराइट, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण, मिसाल। आप सब अमेज़ॉन से कुछ ना कुछ मंगवाते हैं, हर कोई, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ऑलराइट, अब अमेज़ॉन 2 तरीके से आपको चीज़ें भेजता है। एक तो भेजता है
सीधा जो उसका सेलर है, जो अमेज़ॉन के थ्रू वो कर रहा है, बेच रहा है, उससे सामान मंगवा लेता है, फिर अपने डिलीवरी नेटवर्क से बेचता है। ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि अमेज़ॉन के पास अपना गोदाम है, वेयर हाउस है, उसमें सामान जमा रखता है और वहाँ से डिलीवरी करता है। दोनों मॉडल वैलिड है। पहले वाले में खर्चा कमाता है अमेज़ॉन को, क्योंकि गोदाम का खर्चा बच जाता है, लेकिन डिले हो सकता है, देर हो सकती है, क्योंकि 2 लेग्स में वो आएगा ना, 2 हिस्सों में। पहले सेलर से आएगा अमेज़ॉन तक, फिर अमेज़ॉन से आएगा बायर तक। दूसरी तरफ अगर अमेज़ॉन के अपने वेयर हाउस में है तो फिर जल्द सीधे एक स्टेप में आपके पास पहुंच जाएगा। अब जाहिर है कि वो वेयर हाउस जो है, गोदाम जो है, बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा सामान रखना है और हर साइज का, हर आकार का सामान रखना है। यानी कि इतना बड़ा आपका एसी भी रह सकता है और इतना छोटा आपकी मोमबत्ती भी हो सकती है। ठीक है, जो आपके जो परफ्यूम्ड कैंडल्स होते हैं वो भी तो आप अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं। ठीक है, इन सब के लिए जाहिर है कि अमेज़ॉन की गोदाम के अंदर खूब सारे रैक्स बने, शेल्फ्स। ठीक है, तो टिपिकली ये जो वेयर हाउस या गोदाम होता है 25 से 40 एकड़ का होता है। ठीक है, 25 से 40 एकड़ का और करीब 30-40 फुट ऊंचाई में। ठीक है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें खूब सारे उसमें शेल्फ्स हैं इस 40 एकड़ ज़मीन के ऊपर, और हर एक रैक की जो ऊंचाई है वो कम से कम 20-25 फुट है। ठीक है, अब कोई एक या एक टीम लोगों का वो भी इसको हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि कम से कम उसको चढ़ना तो पड़ेगा ऊपर, और कुछ नहीं, अगर भाग के भी पहुंच जाए शेल्फ तक तो चढ़ना तो ऊपर पड़ेगा ना, उसमें समय लगेगा। अब होता ये, अमेज़ॉन क्या करती है, उनके पास इसमें के अंदर, इस तरह के एक गोदाम के अंदर 500-700 हज़ार रोबोट्स होते हैं एक ही तरह के। तो जहाँ पे आपका ऑर्डर जो है ऑनलाइन में रिसीव होता है, वो सारे रोबोट्स को भेज दिया जाता है। जो रोबोट उस शेल्फ के सबसे पास होता है वो ऑर्डर उठा लेता है। यानी कि वो देखता है कि मैं इस शेल्फ के पास हूँ, मैं चला जाता हूँ। वो चला जाता है, फिर उस शेल्फ पे पहुँच के रैक को लोकेट करता है और अपना हाथ ऐसे ऊंचा करता है, ऊपर करता है, और उसको उतार के लेके आता है। इट ब्रिंग्स इट डाउन। अब दो काम हो सकते हैं। एक तो रोबोट वो सीधा उसको डिलीवरी पॉइंट तक ले जाए। दूसरा ये है कि अगले वाला रोबोट जो उसके सबसे पास है उसको पकड़ा दे रिले की तरह, और ऐसे करते करते डिलीवरी पॉइंट तक पहुंच जाए। जाहिर है कि इसके लिए हर एक अपने पड़ोसी, हर एक रोबोट को अपने पड़ोसियों का ज्ञान होना चाहिए। एवरी रोबोट शुड नो अबाउट ऑल द नेबरिंग रोबोट्स। दिस इज मोर एफिशिएंट यूजुअली, क्योंकि फिर हर एक रोबोट का रास्ता छोटा हो जाता है और बिजली की खपत कम होती है। क्योंकि जितना लंबा रास्ता चलेगा कोई रोबोट, बिजली की खपत उतनी ज़्यादा होगी, तो बिजली की खपत कम हो जाती है। अब ये सब कुछ मान लीजिए 1000 रोबोट एक साथ कर रहे हैं, एक सामान के लिए, एक डिलीवरी के लिए, तो पूरी सारी फैक्ट्री में चुप्पी है, एक शब्द नहीं है, क्योंकि इंसान नहीं है, सिर्फ रोबोट्स एक इधर से उधर जा रहे हैं सामान उठाने। दिस इज स्वॉर्म रोबोटिक्स। रोबोट्स का एक झुंड जो है सब मिलके काम कर रहे हैं। हर एक को आसपास के रोबोट्स का पूरा इल्म है, पूरा ज्ञान है कि कौन कहाँ है, लेकिन सब मिलके एक ऑब्जेक्टिव या एक लक्ष्य की तरफ काम कर रहे हैं, जो ये है कि हर एक डिलीवरी को सबसे कम समय में और सबसे कम बिजली की खपत के साथ किया जाए। दिस इज स्वॉर्म रोबोटिक्स। दिस इज ऑल्सो इंडस्ट्री 4.0. So let's revise again. Industry 0.0, steam engine. Transition
change from animal power to mechanical power. Then you have Industry 1.0, use of electricity. So mechanical power to electrical power, steam power to electrical power. 3 is automation. No, 3 is assembly line. All right? Assembly line, but with human beings, human operators. 3 is your automation. So 0 was steam, 1 was electricity, 2 was assembly line, 3 was automation, robots. 4 Industry 4.0 is connected robots, not isolated robots or centrally controlled robots. Robots connected to each other by wireless connections and coordinating the optimal completion of a job within the least time for ensuring high quality of service. Alright. Now I will take a pause here and we can go into question and answer.